in 1989 that my son was terminally ill. And that was the end of me. That was the end of Shekhar Suman. That was the end of my career. I thought that was the end of my life. I remember very clearly when Ayush was on the floor on an ice slab and we had kept Adhyan away. और वो उस शाम वो आया और ऐसा उसने देखा अपने भैया को लेटा हुआ and people were crying and the parents were crying and everyone. I mean, दिल को बहलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि ये कर्म है, चाहे पिछले ज़िंदगी का कुछ हिस्सा बाकी रह गया था, बट गुरुजीज़ एंड ऑल ही सेड वो आपको एक बार मिलेगा ज़रूर. ढलान का फिर कुछ nothing was working. I was extremely sad. That's where the struggle started, and the struggle worsened when I discovered in 1989 that my son was terminally ill. And that was the end of me. That was the end of Shekhar Suman. That was the end of my career. I thought that was the end of my life, my family, everything, because सब कुछ खत्म हो गया मुझे ऐसा लगा. And then for each day that passed, I sat next to my son, holding him in my arms, thinking that one day he's just going to go away. And we were just crying for about 4 years before he went away. He was given 8 months' time. He survived for 4 months. And most trying times of my life. But कहते हैं किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता. So I've been through a lot. I've seen a lot. And I've had, but it's my gratitude to the universe, to God, to people who have helped me, who've been kind enough. And so life goes on. You were asking something about my other movies, but नहीं, मैं इसी में थोड़ा और जानना चाहूँगा जी. मुझे नहीं लगता कि किसी भी माँ बाप के लिए उसके बच्चे से गुजर उससे बड़ी ट्रेजेडी तो है ही नहीं, कुछ नहीं जिंदगी में है ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता. आयुष के गुजरने के बाद आप डिप्रेशन में गए, बहुत सारी चीजें आपके लिए बिगड़ी. अलका जी ने भी इस बारे में बात करी. But she came out much stronger. क्या बदला? I remember very clearly when Ayush was on the floor on an ice slab and we had kept Adhyan away. और वो उस शाम वो आया और ऐसा उसने देखा अपने भैया को लेटा हुआ and people were crying and the parents were crying and everyone. I don't know what changed inside him. He was a very small kid. He was 2-3 years old, 4 years maybe. But something died within him. I would like to get inside his head and know what exactly. He looked at him strangely, not understanding what exactly had happened. But he knew something terrible had happened because everybody was crying. And then he was whisked away, and a couple of days later he said, Bhaiya comes to my window and talks to me. So I said, what do you do then? I said, I talk to him. I talk back. I don't know. I didn't want to probe it further, but something within him changed. And he's the person carrying that baggage for years now. You know, having lost his elder brother, who is almost like, you know, your sibling, you lose your sibling, you feel you are, you know, you're almost like an orphan. You are decimated, you are devastated, and I think all of that happened within him. And it manifests itself many times. I think that is something that he has not been able to get over. We have not been able to get over. Every day we talk to him, we think about him. I don't know why God did this to us. But I guess anybody who loses a child asks the same question to God, why me? You never get the answer. I mean, दिल को बहलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि ये कर्म है, चाहे पिछले ज़िंदगी का कुछ हिस्सा बाकी रह गया था. But a lot of these seers and these saints whom we met, Gurujis and all, he said वो आपको एक बार मिलेगा ज़रूर, दर्शन देगा और आप ही के घर में वापस आएगा किसी न किसी दिन. He was an angel. And बाबा विश्वनाथ के मंदिर अलका गई थी उस समय फाइटिंग लोकसभा इलेक्शंस 2009 फ्रॉम पटना साहिब, और मैं कैंपेन कर रहा था. मेरे पॉकेट में फ़ोन था. वो फ़ोन मैं साइलेंट पे डालना भूल गया. घंटी बजने लगी. आई शुड हैव इग्नोर्ड इट,
और स्पीच के बीच में तो कोई बात भी नहीं करता, तो मैंने जनता को कहा 2 सेकंड ज़रा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आया। तो बिकॉज जब मैंने ऐसे निकाला, बात करते करते जब जेब से निकाला देखा नहीं हल्का फ्लैशिंग, तो मैंने कहा शायद कोई इंपॉर्टेंट बात हो। तो मैं ये भी कह सकता था मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, पर मैंने कहा बोलो। और उसने कहा यू नो व्हाट हैपेंड नाउ व्हेन समबडी टॉक्स इन दैट टोन, और पूरी घबराई हुई, व्हाट डू यू थिंक? एक्सीडेंट हो गया। या द पर्सन दैट हर फ्रेंड हु हैड गॉन विथ हर, शी माइट हैव सम ट्रबल, कुछ तो हो गया है। या दे मेट विथ एन एक्सीडेंट और शी इज लाइक फॉलन इल। और यू नो what was my answer? Did you meet Ayush? She said, how the hell did you know? I met him right outside the temple. But how did you know? I said, I don't know. यही मेरे दिमाग में आया, जबकि कोई ऐसा कुछ कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं थी कि मैं ऐसा बोलता। कोई मंदिर से पता है क्या हुआ, वो कहाँ से बोलूँगा मैं, कुछ और बोलूँगा, बताओ क्या हुआ भाई, जल्दी बताओ, अभी मैं भाषण दे रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता था। फ़ोन नहीं लेता, काट। बोली कि जब मैं गाड़ी में थी, हम लोग निकलने वाले थे, तो एक आवाज़ आई कि कुछ दीजिए पैसे, नॉक नॉक। तो शी वॉज बिजी विद समथिंग, तो उसने 10 रुपये का नोट निकाल के ऐसे उसके हाथ में दे दिया विदाउट लुकिंग एट हिम। तो उधर से आवाज़ आई, इतने से मेरा क्या होगा? शी वॉज लाइक व्हाट? नाउ व्हाई डिड शी रिएक्ट टू इतने से मेरा क्या होगा? बिकॉज व्हेन आयुष वाज इल ही हैड सर्टेन डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, और बहुत कम पोर्शन में दिया जा सकता है उसको। एंड ही वॉज गेटिंग वीक बाय द मोमेंट, वाटर रिटेंशन हो गया था बहुत ज़्यादा, आई कांट इवन बिगिन टू डिस्क्राइब दैट। और बहुत दुबला, पर स्टिक्स के ऐसे हाथ हो गए थे, चेहरा भी बहुत, मतलब मैं वो मंजर याद करता हूँ तो रोने लगता हूँ। और तो हम बहुत कम खाना देते थे उनको, तो वो देखता था ऐसा, और बहुत बच्चे की तरह नादानी में पूछता था, बहुत मासूमियत से कि इतने से मेरा क्या होगा? That's exactly how he said that. And she was like, she said, I blacked out. वो सुन के मैंने कहा, oh my God, this is Ayush. उन्होंने सारा पैसे के लिए हाथ डाला और लेके नहीं, उन्होंने बोला ऐसे क्या होगा, तो उसने ऐसे, she reacted, बोली तो आयुष देखा, तो आयुष खड़ा था वहाँ। She blacked out and she went for the entire bunch of money in her purse. उसको उठाया और देने के लिए हाथ बढ़ाया, तो he wasn't there. He had just come for that moment to meet his mom. Unbelievable but true. और उसके इर्द गिर्द कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से कोई आ सकता था या जा सकता था, खुली सी जगह थी। We've all been through a lot. और मुझे लगा कि ज़िंदगी में आई एम ऑलमोस्ट इम्यून टू नाउ एनी पेन और सक्सेस और फेलियर, ये नहीं, पर पूरा जो दारोमदार था और जिम्मेदारी, और मैं समझता हूँ कि मेरी सारी पूंजी, मेरा सारा सरमाया, मेरी सारी धरोहर अब अध्ययन है। हमें इसकी देखभाल करनी है। अब आयुष इज़ इन हिम, ही इज़ आयुष एंड अध्ययन बोथ फॉर अस। और हमने उसको बहुत नाज़ो नखरे के साथ पाला है। We sent him to the best school in London, here, there, फिर New York Film Academy went, और लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत संस्कारी है, बहुत टैलेंटेड है। एंड वी जस्ट प्रे टू गॉड एवरी डे कि उसको इतनी तकलीफ़ आप न दें, क्योंकि हम बहुत तकलीफ़ों से गुज़र चुके हैं ऑलरेडी, तो इसका ख्याल रखें।